So, hello everyone, welcome to Brain Riot, and today we are going to start chapter 4 of IC01, that is Principle of Insurance, part 1. वैसे तो 6 principles होते हैं, all of them are written there, but we will learn only 2 principles today, how they work and how they operate. Before that, we should revise a little bit of previous chapter, chapter 3, that was rating and pricing insurance products. In the previous chapter, what we learned that insurance premium is not random. It is calculated using loss, experience, exposure, and pricing logic, so that the premium is fair and practical. कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो हमारा फाइनल इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है किस चीज़ों को कंसीडर करके कैलकुलेट किया जाता है. Few of them were frequency, severity, volatility, burning cost, है ना, ये सब थे. We learned the formula of frequency also. What was that? Claims, number of claims divided by total exposure units, right? Also, we learned the formula of severity also, that is the total amount of loss divided by total number of claims. Similarly, we understood that if the volatility is higher, we need to have more caution against the pricing, right? Because volatility high है मतलब कि वो थोड़ा सा risky हो जाता है. We also understood that burning cost is nothing but pure premium, right? It is the expected premium, expected amount we consider before deciding the insurance. And then we understood the pure premium and the final premium, right? Final premium is the pricing that we pay to the insurer as a insured. That is nothing but pure premium plus loadings. And loading was what? Loading was the extra cost that the insurer uh, has for operating the insurance business, right? Like operating cost, acquisition cost, and different types of ads and tech and legal costs, see those kind of things, right? And how did the final premium formula was? It was pure premium, that was nothing but burning cost divided by 1 minus loading percentage, right? Because if we look at carefully, there is final premium. Burning cost is what? Burning cost is, if like loading percent is 45%, then burning cost is 55%, right? So burning cost will become final 55% of final premium, right? सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इसी तरीके से फॉर्मूला बन के आता है. आई होप आप अंडरस्टूड किए होगे इसको लास्ट चैप्टर में. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. एंड इफ यू मेड द क्वेश्चंस इन द लास्ट चैप्टर, आप उसके मार्क्स बता देना, राइट? आई फॉरगॉट टू से दैट इन द लास्ट वीडियो. बट एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, that is chapter 4, principle of insurance. Before studying the principles of insurance, we have to understand क्या होता है अगर प्रिंसिपल्स ना हो एंड क्या होता है अगर प्रिंसिपल्स हो तो, right? Because anything in the world that is running properly needs some rules and regulations, right? We need some principles to run that, right? So that is why we are learning the insurance principles also. एंड अगर सबसे पहले देखते हैं क्या होगा अगर ना हो, तो सबसे पहले तो गलत जानकारी पहुंचेगी सब लोगों के पास, है ना? तो उसको बचाने के लिए वी नीड सम रूल्स प्रिंसिपल्स. ओवर चार्जिंग या अंडर चार्जिंग हो सकती है ना? रॉन्ग एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इंश्योरेंस का, फ्रॉड एंड फॉल्स क्लेम्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है इंश्योरर के लिए भी और इंश्योर्ड के लिए भी. तो क्या होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है. ऐसे बिजनेस में क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा अगर वो बिना किसी रूल्स और प्रिंसिपल्स के बिना चलेगा तो. एंड दैट इज वाई क्या क्या फायदे होते हैं इस प्रिंसिपल्स के. तो फेयरनेस बढ़ जाती है ना? फेयरनेस होता है पूरे सिस्टम में दोनों पार्टीज के लिए. ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि वो दोनों एक सेट ऑफ रूल्स पे चल रहे हैं. सही जानकारी का एक्सचेंज होता है ना, वी एक्सचेंज वेरी राइट इन्फॉर्मेशन. डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, राइट? इंश्योरेंस का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल बनाता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स द इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Understood? So let's start. So the first principle is utmost good faith. As the name suggests, good faith, but in a very utmost manner. ये तो समझ में पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना? But the simple meaning is utmost good faith means both the insured and the insurer must be completely honest with each other. Right? Suppose this is the insurer, this is the insured that has came to take an insurance. So he need to share all the information regarding his risk or whatever he has came for, like whatever insurance he wants from the insurer. He need to be very honest about that, right? And in the same way, the insurer work is to be honest about the policies that comes under that, right? That whatever he wants for whatever insurance he wants, right? So C needs to be right. The insurer needs to be very honest about the policy terms and very clear about it, right? So that is how you maintain a perfect balance between
the insured and insurer. We can read all the things that is there. Do not hide important facts and do not give false answers to each others, right? When the insurer asks you a question like, do you have any disease, then you have to honestly answer, yes, these are the things that I have. If she asks that what type of cars you have, how you got them, like whatever questions she asks, right, तुमको सही सही आंसर करना है, तभी तुम्हारा जो प्रीमियम है और पॉलिसी सही तरीके से बन पाएगा, एंड जब तुम क्लेम लेने जाओगे तब तुमको वहाँ डिफिकल्टीज नहीं आएंगे, राइट? The insurer must also explain policy terms honestly and clearly. Understood? Next is why extra honesty is needed. Like good faith, we know good faith is like good faith अच्छी बात है, but utmost good faith है ना, we have to be utmost good faith. So why utmost good faith? So that because the insurer cannot see every hidden risk directly. क्योंकि आप इंश्योर्ड हो ना, आपको पॉलिसी चाहिए, तो सारी चीजें इंश्योर को तो पता नहीं है, राइट? इसको तो पता नहीं है, तो आप ही बताओगे ना हर एक चीज, है ना? दैट इज व्हाई utmost good faith is very necessary. So it depends on the information given by the proposer. proposer कौन है? तो जो इंसान, जो कस्टमर इंश्योरेंस लेने के लिए आया, इंश्योर्ड तो अभी ये नहीं है क्योंकि इसने अभी इंश्योरेंस करवाया नहीं, जब ये इंश्योरेंस करवा लेगा, इसका प्रपोजल पास हो जाएगा, एवरीथिंग अंडरराइटिंग के थ्रू, है ना, प्रीमियम सेट हो जाएगा, ये भरना शुरू कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? इंश्योर्ड बन जाएगा. बट अभी ये सिर्फ क्या है? प्रपोजल है. Wrong or hidden facts can lead to wrong premium, wrong terms और claim problems later. समझ में आ गया? वेरी गुड. एग्जाम्पल यहाँ पे वी शुड लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल. ए पर्सन बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस should tell about past illness, surgery, smoking habits or diabetes, and the insurer should clearly explain waiting period and exclusions, right? His job is to be honest about himself, and her job is to be honest about the policy terms and be clear about it, right? So I hope you understood what good faith means, right? Now why we understood why we need utmost good faith in the insurance, but we have to understand why, right? Because it is not a normal contract. What? Insurance is not a normal contract. Insurance contract is different from them. How? The insurance contract, buyer can see, inspect, touch or test the item before buying. like आप किसी दुकान में जा रहे हो जूते खरीदने के लिए, आप जूते को देख सकते हो ना, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, साइज हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हो. ये बंदा भी उस आइटम के बारे में जानता है, एंड आपको भी उस आइटम के बारे में अच्छे से देख करके पता चल रहा है ना, ये शॉपकीपर है. So both sides know exactly what is being bought and sold, है ना? So you do the quality check and आपको पसंद आता है and वहीं पे आप खरीद लेते हो. But in insurance, what happens? I will just in insurance, what happens? Insurer cannot directly inspect every hidden risk, right? Like he doesn't know you, na? He doesn't know you. Just came to the insurer, so she will ask questions, है ना? And then assess the risk. So you will have to truthfully answer those things, right? That is why we are studying the principles of insurance. So insurer depends on the proposer answers. Facts like medical history, risky job, past claims or property condition matter, right? And extra honesty is needed so the insurer can make the right decision. एक्स्ट्रा ऑनेस्टी इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली में क्या होता है कि आपको सब पता है, आप देख रहे हो तो आप सब कुछ चेक कर सकते हो ना. इसने बोला कि बहुत हाई क्वालिटी है, बट आपने देखा कि उतनी हाई क्वालिटी नहीं है, तो आप नहीं लोगे. बट यहाँ पे क्या होगा कि आप तो बोलोगे कि भाई मैं तो बहुत फिट हूँ, तो इसको तो वही बिलीव करना पड़ेगा ना. ये तो आपका मेडिकल चेकअप वहीं पे डॉक्टर बुला के नहीं करने लगेगा. मे बी होगा बट बाद में होगा. जब आप प्रपोज कर रहे हो वहां पे तो आप जो बोलोगे वही होगा. समझ में आया? सो दैट इज वाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, है ना. मेमोरी लाइन यहाँ पे है कि नॉर्मल सेल चेक बिफोर बाइंग, बट इन इंश्योरेंस व्हाट हैपेंस? ट्रस्ट बिफोर कवरिंग, है ना, राइट? तो ये ट्रस्ट पे बिल्ड होता है क्या? तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ one more thing is there in utmost good faith is we have to understand the duty of disclosure. So what is this duty of disclosure? आप नाम पढ़ के ही समझ जाओ ना. The proposer or the insured must tell the insurer all the material facts truthfully before the insurance contract is made, right? क्या बोला कि proposer जो है, जो आया है लेने के लिए, सारे फैक्ट्स को उसको ट्रूथफुली इंश्योरर के सामने पेश करने हैं. एंड यहाँ पे लिखा मटेरियल फैक्ट्स, इसके बारे में हम लोग अच्छे से आगे पढ़ेंगे क्या है, बट बेसिकली ये समझ लो कि वो चीजें जो इंश्योरेंस के रिस्क को ये डिपेंड करती है, राइट? जो उस रिस्क पे डिपेंड करती है, वो फैक्ट्स जो उस रिस्क में मैटर करती हैं, वही चीज को हम लोग मटेरियल फैक्ट बोल रहे हैं. जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने आए तो आप हेल्थ के बारे में बताओगे ना कि आपके पास डिजीज नहीं है, तो ये जो डिजीज की बातें हो रही हैं वो क्या मटेरियल फैक्ट्स. आगे हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे इसको. सो व्हाई डिस्क्लोजर मैटर्स?
because it helps the insurer access risk correctly, right? It helps decide accept or reject. It helps fix fair premium, आपके लिए fair premium सेट किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके, कंपनी की भी हेल्प हो सके बाद में जाके. इट हेल्प सेट प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस. बट अगर आप क्या करते हो, डिसऑनेस्ट पर्सन और हाइड करते हो, तो क्या होगा, इफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर हिडन इट में लीड टू रॉन्ग प्रीमियम, रॉन्ग कवर, डिस्प्यूट और क्लेम रिजेक्शन लेटर. आप पे लीगल चीजें होगी ना, आपको अगर बाद पे अगर इंश्योरर ने पकड़ लिया कि आपने ये सारी चीजें डिसऑनेस्टी की है और फॉर्म में गलत गलत चीजें रिपोर्ट की है, तो वो आपसे पूछेगा ना कि आपने गलत क्यों किया है ना, तो एक लीगल डिस्प्यूट हो सकता है वहां पे. ओके, अंडरस्टूड. Now we will learn from the examples. What are the examples? In health insurance, a person buying health insurance should disclose diabetes, surgery history, smoking habit और other serious medical facts. इस तरीके से आपको ऑनेस्ट बनना है कब, हेल्थ इंश्योरेंस में. इन मोटर इंश्योरेंस, disclose previous accidents, modifications or any claims history, right? In property insurance, you have to disclose old structure, right? आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, like what are the leakage, फायर हिस्ट्री और एनी डैमेज इन द पास्ट दैट हैपेंड टू द प्रॉपर्टी, और जो अभी भी है, तभी आपका एक फेयर प्रीमियम सेट होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ योर रिस्क, राइट. एंड एक चीज और, इट इज द प्रपोजल्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट, राइट. ये इसका ड्यूटी है, ये जाके तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचेगा कि हाँ भाई बताओ ये सारी चीजें क्या क्या, दिखाओ दिखाओ, ये इसका काम है, ठीक है. रिस्क जब क्लेम करने आते हो ना, तब भले ही एक एजेंट आता है एक कंपनी की तरफ से, वो सब चीज एसेस करता है कितना का क्लेम बनेगा, क्या क्या होगा नहीं होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. बट फिलहाल जब आप प्रपोज कर रहे हो, तब तो आपको आपका ही काम है कि सारी चीजें आप डिस्क्लोज करो. ये ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर किसका काम है, प्रपोजर का, इंश्योर्ड का, राइट. द इंश्योरर शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेस हिडन रिस्क फैक्ट्स दैट, समझे. चलो, वेरी गुड. नाउ वी जस्ट रेड व्हाट इज मटेरियल फैक्ट्स, सो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं. मटेरियल फैक्ट्स, द फैक्ट्स दैट कैन चेंज द इंश्योरर्स डिसीजन, right? Any fact that can affect the insurer's decision about risk, premium और terms. वो सारे फैक्ट्स जो एक डिसाइड करते हैं इंश्योरर को कि इसका इंश्योरेंस किया जाए या फिर नहीं किया जाए, वो सारे फैक्ट्स है ना, वो कोई भी हिडन फैक्ट्स हो, या फिर उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, या फिर ज्यादा प्रीमियम बढ़ा देना है उसका, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसके प्रीमियम पे रखने हैं, उसके इंश्योरेंस में रखने हैं. Why it matters? Because if a fact can change the insurance deal, that is they can accept or reject a charge or add conditions, it is material. समझे, वो क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया. कौन सा, कोई भी फैक्ट जो इंश्योरेंस डील को अफेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट. ये बात समझनी है कि फैक्ट में लुक स्मॉल बट इफ इट चेंजेस रिस्क इट इज मटेरियल, राइट. So that is why you have to disclose every material facts about the insurance that you want to do, right. Examples है past illness और diabetes before health insurance. risky occupation, अगर आपका patient रिस्की है तो आप पे रिस्क बढ़ जाता है ना अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो. previous claims और frequent hospital visits, house in a flood prone area है ना, vehicle used for commercial purposes. So these kind of things are the examples for the material facts, right. समझ में आया, very good. नेक्स्ट इज अब हम ये तो समझे कि क्या क्या चीज हमें डिस्क्लोज कर देना है ना, लाइक मटेरियल फैक्ट्स क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना है, अब क्या क्या जरूरत नहीं है, राइट. फैक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, जरूरत नहीं है किस चीज की, ऐसे फैक्ट्स को जिसको डिस्क्लोज करने की, क्योंकि वो सब चीजें कॉमन सेंस पे चलती हैं, राइट. जैसे कि आप समझ लो कि जैसे बारिश होने वाली है, तो मानसून एरिया है, तो भाई जैसे मान लो कोई मानसून एरिया है, राइट, तो वहां पे तो बारिश होगी, ये तो कॉमन नॉलेज है, इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना. हमें ये पता है कि जो एक्स्ट्रा फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे हो गया, कहीं भी बिल्डिंग में हो गया, वहां पे अगर फायर इक्विपमेंट्स है तो वो तो किस लिए, वो तो फायर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ना, फायर अगर लगेगी तो उसको बुझाने के लिए, तो कॉमन बात हो गई ना, ये सब चीज डिस्क्लोज करने की नहीं होते हैं. सो द इंश्योरर ऑलरेडी हैज हिज ओन रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और डेटा, है ना. यू आंसर क्लियरली एंड द इंश्योरर एक्सेप्ट्स इट एंड डज नॉट आस्क मोर, राइट. ये सारे एग्जांपल्स हैं, है ना. अब कैटेगरीज हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज में जो चीजें फैक्ट्स आते हैं जो हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. पहला, फैक्ट्स ऑफ कॉमन नॉलेज, जैसा कि हमने समझा बारिश प्रोन एरिया है तो वहां तो बारिश होगी. फैक्ट्स दैट रिड्यूसेस रिस्क, है ना, वैसे रिस्क जो रिड्यूस कर दे, जैसे कि फायर इक्विपमेंट्स. फैक्ट्स ऑलरेडी नोन टू इंश्योरर, राइट, उनके पास पहले से ही रिकॉर्ड है, क्योंकि कई सारे उन्होंने इंश्योरेंस पहले से दे रखे हैं, तो उनके पास भी रिकॉर्ड है, डेटा है, तो वो सारी चीजें जरूरत नहीं है आपको. फैक्ट्स वेव और नॉट आस्क्ड फर्दर, फैक्ट्स वैसे फैक्ट्स जो वेव्ड मतलब
वो इंश्योरेंस इंश्योरर अगर आपसे पूछता नहीं है, आप अगर कोई आंसर ब्लैंक छोड़ देते हो तो वो वेव्ड हो जाता है ना। अगर इंश्योरर उस पर बातें नहीं करता है तो वो वेव्ड हो जाता है ना। जैसे कि हम लोग ट्यूशन फी वेव कर देते हैं कभी कभी, आपने सुना होगा ट्यूशन फी वेवर है ना, आपको ट्यूशन फी भरनी नहीं पड़ती, क्यों? आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको माफ कर देते हैं, तो वही फैक्ट्स आपको माफ हो गए, ठीक है, क्योंकि आपने बताया नहीं और इंश्योरर ने उसमें ध्यान नहीं दिया। एंड और नॉट आस्क्ड फर्दर है ना, जो चीज पे इंश्योरर ज्यादा ध्यान नहीं देता वो तो ऑब्वियस सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है ना। बट बट हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि इंटेंशनली कभी कोई मटेरियल फैक्ट को हाइड नहीं करना है ना। अगर इंश्योरर के पास ध्यान में नहीं रहा, बट वो तो उसका जॉब है कि वो उसको प्रॉपरली एसेस करे, बट स्टिल एज अ ह्यूमन उसको ध्यान नहीं रहा, तो ये आपका काम है कि आप उसको बताओ कि भाई ये सब चीजें हैं। क्योंकि देखो अगर आप ऑनेस्ट रहोगे ना तो एक बॉन्ड बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है आपके बीच और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, जिससे फ्यूचर में ना कभी भी आपको प्रॉब्लम होगा तो कंपनी हिचकेगी नहीं है ना आपकी हेल्प करने में, आपको तुरंत हेल्प करेगी, कोई डिले नहीं करेगी। ये सब चीज छोटे छोटे क्वालिटी ऑफ लाइफ चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं दो लोगों के बीच जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्सो इट कैन लीड टू क्लेम रिजेक्शन एंड पॉलिसी कैंसिलेशन और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कब? जब आप इंटेंशनली कोई हाइड करते हो फैक्ट को। समझ में आया? अब एक चीज लिखा हुआ है, एग्जाम फोकसेस ऑन मटेरियलिटी नॉट ऑन टीनी और ऑब्वियस डिटेल्स। तो फैक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, मतलब यही है कि जो छोटी छोटी बातें कॉमन लैंग्वेज वो जरूरी नहीं है डिस्क्लोज करने की, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमको लगता है कि रिस्क हमको प्रीमियम मिलेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो सब चीजें हमको क्या है बतानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इफ फैक्ट्स आर हिडन। तो हम लोगों ने भी समझा, लाइक अगर नॉन डिस्क्लोजर होता है ना, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है ना, लाइक गलत अगर हम लोग नहीं डिस्क्लोज करते हैं या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? तो हिडन और फॉल्स फैक्ट और रॉन्ग रिस्क के कारण क्या होगा, लाइक अगर हम लोगों ने गलत या हाइड किया फैक्ट्स को तो असेसमेंट हमारा क्या होगा, गलत तरीके से होगा, जिसके कारण प्रीमियम गलत सेट हो जाएगा और रॉन्ग टर्म्स पे सेलेक्ट होगा, जिसके कारण फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्लेम के दौरान डिस्प्यूट हो सकता है, हमें क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड हमारे पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, इवन लीगल ट्रबल्स भी आ सकते हैं हमारे लिए। समझ में आया? है ना, कि तुमने भाई डिस्क्लोज किया नहीं तो इंश्योरेंस बोलेगा हम क्यों करेंगे, है ना, क्यों करेंगे क्लेम तुमको। समझ में आया? ये सब तो बेसिक चीजें हमको समझ में आना चाहिए। तो नॉन डिस्क्लोजर एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि नॉन डिस्क्लोजर जहाँ पे हम लोग हाइड करते हैं फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन को मतलब हम लोग को फैक्ट को तोड़ मरोड़ के बताते हैं या फिर गलत तरीके से बताते हैं। एग्जाम्पल ले लो, रोहन अप्लाइज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बट हाइड्स दैट ही हैज अ हार्ट डिजीज। ये उसने हाइड कर लिया तो ये क्या हो गया, नॉन डिस्क्लोजर हो गया। लेटर ही मेक्स अ क्लेम फॉर हार्ट ट्रीटमेंट। अब उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उसको हार्ट डिजीज है तो प्रॉब्लम तो आएगी, बट उसने फिर हार्ट ट्रीटमेंट का क्या लिया, क्लेम मांगा, बट इंश्योरर फाइंड्स द फैक्ट वाज हिडन, सो क्लेम डिस्प्यूट हो गया और क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, इसको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तुमने तो बात छुपाई थी कि तुमको हार्ट का डिजीज है, अब हार्ट ट्रीटमेंट क्यों चाहिए तुमको, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना। सो ये चीज याद रखनी है कि इनोसेंट मिस्टेक एंड डिलिबरेट फ्रॉड में बी ट्रीटेड डिफरेंटली बाय लॉ, बट बोथ आर रिस्की एंड कैन हार्म योर क्लेम, राइट। यहाँ तक समझ में आया? गुड। देखो एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोग, मेरा तो यही मानना है कि अगर हम लोग चैप्टर को समझेंगे ना, समझेंगे तो हमें चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, ये सब चीजें लाइंस याद नहीं करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल्स, इसलिए मैंने हर स्लाइड में एग्जाम्पल्स दिए हुए। एग्जाम्पल से आप जब समझ जाते हो तो आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब एक चीज दिया हुआ है जिसे हमने डिस्क्लोज किया प्रपोजर के सामने अपने फैक्ट्स को, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, या फिर अगर किसी ने नहीं डिस्क्लोज किया तो हमारे पास एक चीज है लाइफ इंश्योरेंस में, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेक्शन 45 आइडिया। इंश्योरेंस एक्ट ऑफ सेक्शन 45 सेज, इंश्योरेंस एक्ट क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इसका सेक्शन 45 ये कहता है कि जो भी इंसान अगर लाइफ इंश्योरेंस अपना, लाइफ एश्योरेंस अपना करवाता है, एश्योरेंस और इंश्योरेंस का हम लोग डिफरेंस समझे थे, जो करवाता है, आप उसको बिना किसी रीजंस के, इंश्योरर उसको बिना किसी रीजंस के उसके पॉलिसी में चेंजेस नहीं कर सकता है ना, लाइक अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा रीजन हो, कोई फ्रॉड का बात हो, तब तक वो उस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं डाल सकता। और ये भी एक सेट ऑफ, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है बट मैं शायद भूल गया लिखने के लिए, लाइक एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइक इंश्योरर कंपनी जो है वो उसके पास बस 3 साल का टाइम होता है, ओनली 3 years, जहां पे वो इंश्योर्ड को क्वेश्चन कर सकती है ना, और वो भी क्वेश्चन सारी बातों पे नहीं कर सकती है, वो बस ओनली फ्रॉड पे क्वेश्चन कर सकती है। हाँ, वो आपसे कुछ कुछ फैक्ट्स जान सकते हैं, लाइक एज क्या है, हेल्थ क्या, इनकम, हैबिट्स, ऑक्यूपेशन, मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपसे पूछ सकती है, लेकिन आपको उस पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं कर सकती, उसको खत्म नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस क्या वो फ्रॉड का केस हो। समझ में आ रहा है? अनटिल एंड अनलेस वो क्या हो, फ्रॉड का केस हो, तब तक कंपनी आपको
लाइफ इंश्योरेंस को, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस को 3 साल के अंदर ही आपसे क्वेश्चन कर सकती है। ये बात याद रखना है। ये हम लोग के लिए एज अ इंश्योर्ड पर्सन, एज अ कस्टमर, हम लोग के लिए ये सेक्शन 45 में रूल डाला गया है कि इंश्योरेंस कंपनी बस 3 साल, जब इशू हो गया ना इंश्योरेंस, उसके 3 साल के अंदर ही हमें क्वेश्चन कर सकती है, राइट। उसके बाद उनके पास कोई हक नहीं है हमें क्वेश्चन करने का, ठीक है। 3 साल के बाद हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस कंपनी की गलती है ना, कि अगर आपने उसमें कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन था या डिस्क्लोजर का कुछ दिक्कत था, तो आपने, आपके पास 3 साल थे, आपने उसको यूज कैसे नहीं किया। ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी भी फायदा नहीं उठा पाए हमारे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज काफी बड़ा होता है ना, क्योंकि ये डेथ पे होता है, समझ रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। The policy cannot be questioned just because of small mistake or later changes. But if there is deliberate fraud or a serious false statement and important facts about the important facts, the insurer can still reject the claim. उसके पास 3 साल है, राइट। अगर उसमें कोई फ्रॉड वो पकड़ता है, तो वो क्या कर देगा, उस पॉलिसी को जो मैंने खरीदा उसको क्या कर देगा, वॉइड कर देगा, है ना, पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा, और मैंने जितना भी प्रीमियम भरा है वो उसको क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। बट अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है ना, फ्रॉड की बात नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, तब भी हमें प्रोटेक्शन ये है कि वो क्या करेगा, उसको, कंपनी को, ठीक है, वो उसको खत्म कर तो कर देगा, वॉइड तो कर देगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्रीमियम मैंने भरा है उसमें इंश्योरेंस में, उसको सारी प्रीमियम 90 डेज के अंदर क्या करनी है, मुझे वापस करनी है, 90 डेज के अंदर वापस करनी है। सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 45 लाइफ इंश्योरेंस में क्या कहता है, 3 साल का हमें क्या है, प्रोटेक्शन नहीं है। 3 साल तक इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्वेश्चन कर सकती है अबाउट द इंश्योरेंस, उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं कर सकती, एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि मैंने खरीद लिया है ना, टाइम पास हो गया। अब मेरे, मुझे जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब मैं सीधा क्लेम लूंगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ समझ में आया है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना, इसको आपको याद रखना है। क्या, 3 साल वाला, किसमें, ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस, और कहीं नहीं ये काम आएगा, ठीक है। बट सेम चीज हमारा हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज होती है। तो ये डिफरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस डिस्क्लोजर में, कि सबसे पहले तो ये समझो हेल्थ इंश्योरेंस डिस्क्लोजर है क्या, राइट। डिस्क्लोज ऑल इंपॉर्टेंट हेल्थ फैक्ट्स ऑनेस्टली, ये तो हम लोग समझे थे। एट द टाइम ऑफ प्रपोजल हमें सारी चीजें बतानी पड़ती है। एट रिन्यूअल और चेंजेस, है ना, रिन्यूअल क्यों, क्योंकि भाई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है ना, कि आपने एक बार ले लिया सीधा डेथ पे, या फिर जब मैच्योरिटी हो जाएगी तभी उसका, है ना, 30-40 साल। बट हेल्थ इंश्योरेंस होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे होता है ना, छोटे टर्म्स में होता है। तो रिन्यूअल कराना पड़ता है, चेंजेस कराना पड़ता है। तो आप अगर सेम इंश्योरेंस कंपनी से वो चीजें करवाते हो, है ना, जिससे आपने खरीदा, और उसी से आपने क्या कर लिया, रिन्यू कर लिया, तो या फिर दूसरे से भी अगर करवाते हो, इफ द पॉलिसी और रूल्स रिक्वायर डिस्क्लोज न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तब लाइक वो आपसे फिर से क्वेश्चन कर सकती है कि आपको क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या इन सालों में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो वो फिर से आपका सारे फैक्ट्स को फिर से वो लेगा, है ना, सारे फैक्ट्स को, मटेरियल फैक्ट्स को फिर से आपसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और एट द क्लेम टाइम प्रोवाइड डॉक्यूमेंट दैट मैच व्हाट वाज डिस्क्लोज्ड अर्लियर, है ना, आपको सारे रिकॉर्ड्स रखनी पड़ेंगी जब आप क्लेम करना चाहोगे। बट हम लोगों ने ये समझा ना, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में हमारे पास 3 साल का टाइम होता है ना, कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या कर सकती है, वो डिस्क्लोजर मांग सकती है। आप एट द रिन्यूएबल टाइम, या फिर जब लैप्स कर जाता है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, तब आपको फिर से चलाने के लिए उसके आपके वो कंपनी आपसे क्वेश्चन कर सकती है 3 साल के अंदर। 3 साल के बाद कुछ नहीं कर सकती। हेल्थ इंश्योरेंस में भी यही चीज है कि जब आप 8 साल तक, 8 ईयर्स तक सेम कंपनी से, सेम इंश्योरर से, है ना, सेम इंश्योरर से अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस फिर से करवाते रहते हो, तो 8 साल लगातार वो आपका एक मोरेटोरियम पीरियड बन जाता है ना। मोरेटोरियम पीरियड वर्ड याद रखना है, मोरेटोरियम पीरियड बन जाता है, MORATORIUM, है ना, इसमें शायद लिखी हुई नहीं है, शायद ये स्लाइड अच्छे से बनी नहीं। वो मोरेटोरियम पीरियड बन जाता है, जिसमें उस 8 साल तक वो आपका इंश्योरर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। बट 8 साल के बाद किसी भी ग्राउंड्स पे, लाइक जब तक कि फ्रॉड ना हो और एक्सकल्जन ना हो, राइट, उस आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। उस 8 साल के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि 3 साल तक, और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, 8 साल का आपके पास मोरेटोरियम पीरियड है, ठीक है। मोरेटोरियम पीरियड इसलिए क्योंकि आप पॉलिसी रिन्यू करवाते रहते हो, ठीक है, तो आपको 8 साल मिलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ लिखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस डिस्क्लोजर की, क्या है कि डायबिटीज बिफोर पॉलिसी, सर्जरी, स्मोकिंग हैबिट, एक्सकल्जन क्या क्या है, ये सब चीजें हैं। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है ना। अब अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी बनाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, वो दो तरीके से होती है, एक वॉइड और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में थोड़ा सा क्या है,
डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? void contract treaties there is no valid contract and no legal effect from the start। जैसे कि आपने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, पॉलिसी ली, बट उसमें बाद में चला गया, कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई उस पॉलिसी में, समझ में आ रहा, कुछ फ्रॉड हुआ, समझ में आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सिंपली वॉइड हो जाएगा, है ना। उसमें कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सीधा खत्म कर देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। नो वन कैन इन्फोर्स इट, नो राइट्स और ऑब्लिगेशंस फॉर आइदर साइड, राइट। वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पेपर फट गया, समझ लो एक तरीके से। ना इंश्योर कुछ कर सकता है और ना इंश्योर्ड कुछ कर सकता है, ठीक है। रीजन क्या क्या रीजन? बिकॉज ऑफ इलीगल पर्पस और इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट और लैक ऑफ कैपेसिटी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, पॉलिसी फॉर एन इलीगल एक्टिविटी, राइट। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए पॉलिसी है तो वो क्या हो गया, कंप्लीटली वॉइड हो गया ना, उसको कोई मतलब नहीं है एग्जिस्ट करने का। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द entitled party chooses to cancel or avoid it। समझ में आया कि वैलिड, जब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कब तक, जब तक कि जो इंटाइटल्ड पार्टी है, समझ रहे हो, इंटाइटल्ड पार्टी है, तब तक कि उसको क्या ना कर दे, कैंसिल कर दे या फिर उसको अवॉइड कर दे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखो, इफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वर नॉट डिस्क्लोज, इसी को समझते हैं हम लोग, इफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वर नॉट डिस्क्लोज्ड और वेयर फॉल्सली स्टेटेड, द इंश्योरर में गेट द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समझ में आया क्या लिखा हुआ? अगर फॉल्सली स्टेटेड है ना, नॉट डिस्क्लोजर है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो इंश्योरर के पास राइट आता है कि वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, ठीक है। ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट इन द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अनटिल एंड अनलेस अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर हुआ होगा, फ्रॉड हुआ होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ होगा, है ना, ये सब चीजें। अब एग्जांपल समझ लो कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीरियस इलनेस, ठीक है। तो समझ में आया कि जिससे कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास, एग्जांपल से समझते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने गया, मैंने अपना सीरियस इलनेस के बारे में बताया नहीं, तो क्या हुआ कि हार्ट कंडीशन के बारे में नहीं बताया, तो पॉलिसी क्या हो गई, अवॉइड की जा सकती है कि इंश्योरर के द्वारा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंश्योरर ही ना वो रिस्क ले रहा है, आपका रिस्क वो इंश्योरर उठा रहा है, तो वो इंटाइटल्ड है कि भाई आपको कुछ होगा तो हम आपको पैसे देंगे, बट आपने कुछ बताया ही नहीं आपको क्या क्या होगा, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, है ना, ठीक है, उसको हटा सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहना है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अब एक चीज यहाँ पे कि ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कब अप्लाई होती है, ठीक है, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कब अप्लाई होती है। एक तो होता है कि प्रपोजल स्टेट, जब हम, ऑब्वियस सी बात है, लाइक जब हम लोग प्रपोज करने जाए तो वहां पे हम लोग सारी चीजें बताएंगे, ऑनेस्ट रहेंगे ना, सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे, तो वहां पे हमारी ड्यूटी तो लगेगा ही। दूसरा है कि जब हम लोग को कोई आंसर करना होता है, क्वेश्चन किसका, इंश्योरर का, इंश्योरर क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे कोई हाइडिंग, कोई गेसिंग नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, चेंज और अपग्रेड। if you are like renewing our policy or changing any terms in the policy or upgrading it like premium होता है, discount, समझ में आ रहा है, तो then at that point we have to disclose new important facts if required by the policy or when asking for changes, correct। and next is at the claim time, obviously जब हम लोग claim लेने जाएंगे अपना, claim sorry, then all the records and information should match what was disclosed, ठीक है। the basic idea is honesty when facts matter to the insurer's decision, राइट। तो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर इन जगहों पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मेनली ये याद रखना है कि आप लोग को प्रपोजल टाइम, और जब हम लोग रिन्यू करा रहे हैं, है ना, या फिर से स्टार्ट करा रहे कोई इंश्योरेंस, तो वहां पे हमको फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। एंड एट द लास्ट एट द क्लेम पॉइंट, क्लेम टाइम, ठीक है, समझ में आया? गुड। नेक्स्ट इज एटमोस्ट गुड फेथ, हम लोग यहाँ तक समझ गए, आई होप कंप्लीटली समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एमसीक्यूज हैं एंड एक बुक स्टाइल है, ठीक है। सपोज अर्जुन अप्लाइड फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी but did not tell the insurer about his regular high blood pressure treatment, ठीक है। उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया बट हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया जो कि रेगुलरली हो रहा था। लेटर ही हैड मेड अ क्लेम रिलेटेड टू अ हार्ट प्रॉब्लम, द इंश्योरर रिजेक्टेड द क्लेम, वाज द इंश्योरर्स एक्शन जस्टिफाइड, व्हाई। तो इंश्योरर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्लेम को, उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, समझे, उसको पैसे नहीं दिए, क्यों? क्योंकि आपने, अर्जुन ने अपना ऑनेस्ट अटमोस्ट गुड फेथ, उसने उसको जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर थी उसको फॉलो नहीं किया, उसने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, है ना, और सॉरी मिस रिप्रेजेंटेशन ही, अनडिस्क्लोज रखा अपनी बातों को, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, इंश्योरर ने उसके क्लेम्स को क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया। तो यस, इट इज टोटली जस्टिफाइड दैट द इंश्योरर रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ अर्जुन बिकॉज ही डिडंट because he did not disclosed about his high blood pressure treatment at the time of the proposal, right। that is why the insurance company rejected his claim, समझ में आया?
Second is MCQ. Utmost good faith in insurance means. Option A, insurer must be honest, but proposer can hide minor facts. नहीं होगा यानी both an insurer and insurer proposer must be completely honest with each other. Correct, ये बात तो सही लिखी हुई है. Only insurer must tell the truth. No, honesty is required only at the time of claim नहीं, only at the time of claim नहीं, पूरे इंश्योरेंस जर्नी के दौरान. ये क्या होगा? B. Right. Which of the following is example of material fact? Material fact का क्या एक example हो सकता है? Favorite hobby, height and weight, previous hospitalization for heart disease, preferred brand of shoes. तो क्या होगा? C. क्योंकि हॉबी से हमारे इंश्योरेंस का क्या मतलब? कोई नहीं. हाइट एंड वेट से मतलब हो सकता है, ठीक है, बट मटेरियल फैक्ट है ना, मटेरियल फैक्ट जो हमारा डिसाइड करेगी कि प्रीमियम कितना सेट होगा, हमें रिस्क इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं, इस पे है कि प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड्स पे है ना, फॉर हार्ट डिजीज. अगर कोई हार्ट डिजीज है तो उसके रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हमें बताना है, वो ना वो चीज डिसाइड करेगी, इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ अ प्रपोजर हाइड्स अ मटेरियल फैक्ट द इंश्योरर कैन. अगर कोई प्रपोजर मटेरियल फैक्ट हाइड करता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है इंश्योरर? रिड्यूस द क्लेम अमाउंट. रिड्यूस क्यों करेगा? कैंसिल द पॉलिसी एंड रिजेक्ट द क्लेम. इग्नोर इट इफ द क्लेम इज जेन्युइन. पे द क्लेम आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रीमियम. तो क्या कर सकता है? वो कैंसिल कर सकता है किस चीज को? पॉलिसी को. समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसने मटेरियल फैक्ट को क्या रखा है? हाइड किया. वो इग्नोर क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? इग्नोर क्यों करेगा? तो इंश्योरेंस क्लेम ठीक है, जेन्युइन है, आपके पास कोई बड़ा रिस्क है, लेकिन आप एक बिजनेस चला रहे हो ना, आप एक इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप जो बिजनेस चला रहे हो, अगर आपने फॉल्ट ढूंढ लिया उसमें, तो आप क्यों क्लेम दोगे? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये विच स्टेटमेंट इज ट्रू? स्मॉल लाइज आर एक्सेप्टेबल इफ द क्लेम इज लार्ज. ये तो कंप्लीटली गलत है, लाइज तो चाहिए ही नहीं भाई. ठीक है. अटमोस्ट गुड फेथ इज रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग क्लेम. ड्यूरिंग क्लेम चाहिए होता है क्या ओनली? नहीं, ये भी गलत है. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स कैन लीड टू क्लेम रिजेक्शन. ये तो एकदम सही बात है. इंश्योरेंस कैन नॉट आस्क फॉर मेडिकल हिस्ट्री. तो गलत बात है, वो तो पूछ ही सकता है. तो क्या होगा? ऑप्शन सी. ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो यस, सॉरी, ये 4-5 क्वेश्चन थे जो कि हमारा अटमोस्ट गुड फेथ का एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, वेरी गुड. अब आगे हम लोग देखते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. पहला हमारा अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल था, जिसमें हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, सब समझा. दैट अब नाउ है, अब नाउ क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, थोड़ा सा समझा था इसको, बट अभी फिर से समझते हैं. सो व्हाट इट मींस? सिंपली रियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द थिंग और अ पर्सन इंश्योर्ड. If you understand it properly, insurable interest means you would suffer a real financial loss or disadvantage if the subject is damaged, lost, or the person dies or is harmed. बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो होता है जिसका मतलब ये होता है कि आपका उस चीज में है ना, आप उस जिस चीज, कोई भी चीज अगर आपके सामने, वो इंसान हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकता है, अगर वो खराब हो जाती है ना, अगर वो लॉस हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसका आपके ऊपर फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ेगा. कैसे पड़ेगा? फाइनेंशियली. फाइनेंशियली समझना है, फाइनेंशियली. इसका मतलब कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं. जैसे मैं बोलूंगा अगर पति पत्नी है, तो ये पति पत्नी एक दूसरे का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ है. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ना. एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को लूज कर देगा तो उसके लिए भी वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही हुआ एक तरीके से. एक वाइफ हस्बैंड को लूज, अगर वो कमा रही है, ठीक है, एक दूसरे का घर चला रही है, तो फैमिली लॉस क्या है? इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा ना. तो वो क्या है? एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. बस यहाँ पे इमोशंस नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है ना, इसको समझना है ध्यान से. So what is the core or logic behind it? If nothing bad happens to you financially when the subject is lost or damaged, then you usually do not have insurable interest. समझ में आया? And do not confuse love or curiosity with insurable interest. It must have a legal or financial connections. समझ में आया? Examples क्या है? House burns down and you lose money. Right, straightforward. Car is damaged, you pay to fix. यहाँ पे आपका financial loss हुआ. You pass away and your family loses income. जैसे कि मैंने समझाया. Child gets seriously ill and you face expenses, है ना. अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर उसकी माता पिता का क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना. Debtor can't pay and you lose money. Debtor can't pay and you lose money. Right. अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, एक सेकंड में अगले स्लाइड्स में देख लेता हूँ दिया हुआ है कि नहीं. हाँ है दिया हुआ. ठीक है, तो हम लोग आगे समझेंगे. वैसे मैं जो बोलने वाला था ये कि एक क्रेडिटर होता है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, राइट. तो जो बैंक है वो बन गया क्या? क्रेडिटर. और आप बन गए क्या? डेब्टर. राइट, ये आगे है.
तो आप क्या हो गए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया इसका बैंक का या क्रेडिटर का, आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपको अगर कुछ होगा तो बैंक का उस लोन जिस चीज के लिए लोन लिया है वो फाइनेंशियली लॉस होगा ना, तो आप डेप्टर बन गए क्या, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सॉरी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझ में आया? यहीं पे लिखा हुआ है क्रेडिटर टू डेप्टर टू एक्सटेंट ऑफ डेप्ट, हाँ कितने दूर तक, जितने का आपका डेप्ट लिया है ना, यू कुड लूज द मनी और टू यू। सो समझ में आया आपको? ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे है कि वाई इट एग्जिस्ट टू प्रिवेंट्स गैम्बलिंग ऑन लॉस, कि आप जो लॉस के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो आप उससे खिलवाड़ ना करो, है ना, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, फाइनेंशियल लॉस अगर हो सकता है तो आप उसको गैम्बल ना करो, है ना, आप उसको एक अच्छे रिस्क, प्रॉपर रिस्क की तरह समझो, आप उसको सेफ रखो। इंश्योरेंस इज फॉर जेन्युइन प्रोटेक्शन, नॉट फॉर प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। गॉट इट? ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, we understand why insurable interest is needed. Just like why utmost good faith is needed, we will understand why insurable interest is needed, right? So it ensures only people with a real stake by the insurance. Real insurance, like insurance only protect those who is actually needing the, who actually wants the insurance, not everyone जो gamble कर रहे हैं, है ना, वो उनके लिए नहीं है ये चीज। जो एक्चुअली प्रोटेक्शन चाहते हैं कि भाई ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गाड़ी मेरा इससे घर चलता है ना, मेरा फैमिली का प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे मुझे एक प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए, तब हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। एंड दैट इज व्हाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एग्जिस्ट, टू मेक द इंश्योरेंस इंश्योर ओनली सीरियस पीपल, राइट? reduces moral hazard हम लोग जानते हैं क्या है ना, dishonesty, when you have something to lose you care for it responsibly, less chance of abuse or carelessness, ठीक है, यहाँ मोरल होना चाहिए तो फिर ठीक है। makes claims fair, the claim is paid to the person who truly suffers the loss, not to someone looking for a windfall, right? जो एक्चुअली में सफर कर रहा है, जो हवाबाजी कर रहा है उसके लिए नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में you your own car because you would suffer from the loss if it's damaged, right? You cannot normally insure your neighbor car just because you like it or want to profit from the loss, ठीक है। insurable interest connects insurance to protection and not speculations, right? protection speculations का मतलब आई होप आप समझते होंगे। it keeps insurance honest, responsible and fair for everyone, राइट? एक चीज और है यहाँ पे, बाइंग इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज लाइक प्लेसिंग अ बेट ऑन समवन एल्स फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून, दैट इज नॉट इंश्योरेंस, इट इज वेजरिंग, राइट? समझ में आया होगा? ग्रेट। नाउ what on what basis can a insurable interest be become like, कौन कौन सी बातों पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? तो सबसे पहला है ऑनरशिप। सबसे पहला क्या चीज है? ओनरशिप। लाइक आप किसी चीज को ओन कर रहे हो, इफ आई ओन इट then I have an insurable interest in that subject, in that matter, right? Simple meaning, ownership creates insurable interest because if the thing is damaged or lost or destroyed, the owner can suffer financial loss. Example, आपका खुद का घर हो गया और खुद का गाड़ी हो गया, आपका खुद का शॉप हो गया, कोई बिजनेस हो गया, है ना, आपके खुद के प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आपके जो फार्मिंग लैंड्स हैं, राइट, मशीनरीज हैं जिससे आपका घर चलता है ना, तो ये आपको क्या करता है, इनकम को खराब कर सकता है। Why it matters? Because it prevents random strangers from taking the insurance only to profit from your loss, right? That is why we need proper ownership. आपको इसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ओनरशिप है, जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसमें, तभी आपको वो इंश्योरेंस मिलेगा। समझ में आया? गुड। नाउ एंड ऑल्सो देयर आर सम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है? Contractual relationship means you may not own the property, but a contract makes you financially responsible or affected. Then you may have insurable interest, right? आप डायरेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं हो, मतलब डायरेक्टली आप ओन नहीं करते हो, बट आपका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे कि आप किसी वेयर हाउस में काम करते हो, राइट? देन आप जो मटेरियल हैंडल कर रहे हो वो भी तो एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है ना, तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, तो आपका क्या हो गया, वो इंश्योरेंस इंटरेस्ट बन गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन गया, राइट? आप गैरेज में काम करते हो तो आपका जो व्हीकल है वो क्या बन गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, राइट? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज दी हुई है। सबसे पहले दिया बेली, वेयर हाउस कीपर और कैरियर। बेली का समझ में, बेली क्या है ये समझते हैं। तो जैसे कि आपको कोई सामान रखने के लिए दिया, राइट? जैसे आप दुकान जाते हो, शॉप, टेलर शॉप जाते हो, तो आप कपड़े देते हो किसको? टेलर को। तो वो टेलर बन गया आपका बेली, ठीक है, आप बेलर बन गए। तो बेली इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो वो जो टेलर है उसके पास जो आपने कपड़े दिए उस कपड़े का क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, क्योंकि वो अगर गायब होता है, थेफ्ट होता है, कुछ भी डैमेज होता है, तो आप बोलोगे मुझे इसका पैसा वापस करो। तो उस शॉपकीपर के ऊपर क्या आ गया, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, उसका इंटरेस्ट आ गया उसमें। समझ में आया? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर हाउस में भी और कोई भी कैरियर में भी।
सेकंड इज रिपेयर एंड गैराज, यहाँ पे भी हमने समझा कि अगर कोई कार डैमेज होगी तो कस्टमर मांगेगा पैसे आपसे, तो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन गया उसमें। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूं, समझना। लीज और पर्सन यूजिंग हायर्ड प्रॉपर्टी, लाइक टेनेंट के बारे में बात हो रही है, समझ में आ रहा है? जैसे कि आप रेंट पे कोई जगह पर रहते हो, तो या फिर आपने लीज की हुई है किसी फ्लैट को या बिल्डिंग को, तो क्या हो गया, आपका जितने भी दिन के लिए आप रह रहे हो उतने दिन तक का आपका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन गया। कि अगर आप कोई चीज उस रूम में खराब करते हो, प्रॉपर्टी डैमेज करते हो, लॉस करते हो, तो आप उसके लायबल बन जाते हो ना, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको ठीक कराना, है ना। ओनर क्योंकि आपसे पैसे मांगेगा तो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो इस तरीके से इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन गया। मैं मतलब बेसिकली आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब समझाना चाह रहा हूँ, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड की एम्प्लॉय फॉर बिजनेस रिलेशन। एम्प्लॉयर एंड की एम्प्लॉय, लाइक अगर हमारा बिजनेस एक एम्प्लॉय के बेसिस पे चल रहा है क्योंकि वो अच्छा से काम कर रहा है, तो हमारे बिजनेस में बूमिंग आ रही है ना, हमारा अच्छे से काम चल रहा है, तो वो एम्प्लॉय के ऊपर क्या आ गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, है ना। की एम्प्लॉय हुज इंजरी स्टॉप्स ऑपरेशंस, अगर उस एम्प्लॉय को कुछ होगा तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, नुकसान होगा, इसलिए कई सारे कंपनीज इंश्योरेंस करवाते हैं एम्प्लॉयज का। समझ में आया? एग्जाम टिप क्या है कि ओनरशिप इज वन सोर्स बट नॉट द ओनली सोर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो क्रिएट इंश्योरेंस इंटरेस्ट, राइट? गुड। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कहां से आ गया अभी, अवॉइडिंग, ये चीज अभी नहीं आना था, ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अच्छा इसको भी रहने दो, ये स्लाइड अभी रहने दो, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आई थिंक गलत स्लाइड आ गया मेरे। नेक्स्ट इज अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट, है ना। एग्जांपल्स और क्या क्या से एग्जांपल्स हैं, हम लोग सारे एग्जांपल्स एक एक करके देखते हैं। एक तो ओनरशिप हमें पता ही है ना। सेकंड इज क्रेडिटर एंड डेप्टर, लाइक अगर आपको कोई चीज लोन पे मिल रही है, जितने का आपने लोन लिया उस पे आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेक हो गया ना, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन गया। टेनेंट एंड लीज हमने समझ ही लिया कि आप अगर कोई रेंट पे लेते हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एम्प्लॉयर एंड की एम्प्लॉय समझ लिया कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके ऊपर वो बिजनेस चल रहा है कि आप ज्यादा अच्छे से काम करोगे तो बिजनेस अच्छे से काम करेगा, अगर आपको कोई नुकसान होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होगा, तो आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाओगे इस कंपनी के लिए। कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर, राइट, लाइक आप कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर मतलब कोई काम हो रही है ना, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंश्योरेबल हो, क्योंकि अगर उनको कुछ खराबी होगा तो वो बिल्डिंग बनेगा नहीं, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरर एंड री इंश्योरर है। ठीक है, कि इंश्योरर में प्रोटेक्ट इट्स ऑन रिस्क थ्रू री इंश्योरेंस, तो री इंश्योरर का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है किस पे, इंश्योरर पे, तो री इंश्योरर कवर किया क्या, इसके फाइनेंशियल लॉस को, तो इसका भी इस पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, एक और चीज की, जैसे आप कोई पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो अगर आपके पार्टनर को कुछ होता है तो आपके बिजनेस को प्रॉब्लम होगी, तो आपके पार्टनर के ऊपर भी आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हो। समझ में आया? तो ये सारी चीजें एग्जांपल्स थी ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये चीज, एक और चीज समझना है कि कब ये एग्जिस्ट करेगा, व्हेन मस्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, which means it must exist at the correct time, right? The timing is not the same in every kind of insurance. Just like utmost good faith, हम लोग को वो चाहिए कब चाहिए, at the time of proposal, at the time of रीचेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं या फिर रिन्यू कर रहे हैं तब, एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम, राइट। उसी तरीके से इंश्योरेबल एग्जिस्ट की भी कुछ टाइमिंग होती है। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल एग्जिस्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन द पॉलिसी इज टेकन। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में चाहिए कब, ये एकदम जरूरी है कि जब हम लोग पॉलिसी ले रहे हैं तब उस टाइम वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहना चाहिए। लाइक एग्जांपल समझो कि अगर हम लोग किसी का लाइफ इंश्योरेंस करवा लें, सपोज मैं अपने फादर का या फिर मम्मी का या फिर मैं खुद का ही अगर लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो मैं उस टाइम प्रेजेंट रहूंगा या फिर मैं उस टाइम एग्जिस्ट करूंगा तब ना करवाऊंगा, मेरे फादर मदर एग्जिस्ट करेंगे तब ना करवाऊंगा, तो वो फादर मदर क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना। तो लाइफ मस्ट एग्जिस्ट व्हेन द पॉलिसी इज टेकन इन लाइफ इंश्योरेंस। इन मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। ठीक है, आपका क्या कार्गो का नुकसान हो गया वो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट लॉस होने के टाइम रहना चाहिए। ठीक है, पर्सन मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट व्हेन द कार्गो लॉस हैपेंस। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी या फिर जनरल जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, अदरवाइज यू हैव नो रियल क्लेम। लाइक आपको स्टार्टिंग में भी होना चाहिए, लाइक आप घर बना रहे हो, तो घर बनाया आपने, तो घर जब बना तो आप जब क्लेम प्रपोज करने जाओगे तो घर दिखाओगे, और जब क्लेम लेने जाओगे तब भी तो आप घर दिखाओगे कि क्या क्या डैमेज हुआ, क्या नुकसान हो गया, घर टूट गया, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका तब भी होना चाहिए। समझ में आया? तो लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कंपलसरी है, मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस कंपलसरी है,
एंड प्रॉपर्टी में बोथ टाइम आपका कंपलसरी है, मतलब जनरल इंश्योरेंस में आपको बोथ टाइम आपका कंपलसरी है, एट द टाइम ऑफ प्रपोजल भी, एट द टाइम ऑफ लॉस भी। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट के कुछ एमसीक्यूज हैं, है ना। एक एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है कि रवि टेक्स इंश्योरेंस ऑन हिज नेबर्स कार बिकॉज ही लाइक्स द कार एंड वांट्स मनी इफ इट इज डैमेज, डज रवि हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, व्हाई। तो रवि है अपने नेबर के कार पे इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, तो Ravi doesn't have the insurable interest on his neighbor's car because he does not have a direct relationship with his car. He doesn't have the ownership of his car, of the car, right? So he does not have insurable interest. समझ में आया? MCQs है. Insurable interest means emotional liking, no. Real financial interest, yes. B. ठीक है? एक सेकंड. Which is the example of insurable interest? Your own house, stranger's bike, celebrity car, random shop, no. Your own house. A creditor has insurable interest, unlimited नहीं, to the extent of debt. हाँ, जितना पैसा आपने जितना डेप्ट दिया है उतने ही तक का क्रेडिटर के पास क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा, एट द क्लेम टाइम ओनली, नो, एट द पॉलिसी इंसेप्शन, यस। इंसेप्शन में शुरुआत होना, नेवर, ये तो नहीं, आफ्टर प्रीमियम पेमेंट नहीं। तो जब हम लोग ले रहे हैं पॉलिसी को, स्टार्ट करवा रहे हैं, तब हमारे लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल एग्जिस्ट करना चाहिए। आप लोग ये बताओगे मुझे कि मरीन इंश्योरेंस में कब एंड जनरल इंश्योरेंस में कब होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेबल एग्जिस्ट कब होता है, आप लोग ये कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका आंसर की है जो हमने पढ़ा अभी जस्ट बनाया, ठीक है। तो फाइनल समरी क्या है हमारा, तीन चीज, दो चीज, अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली बताने हैं, कोई भी फैक्ट्स हाइड नहीं कर सकते, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर बना के चलना है ना। Insurable interest is a protection, not betting. There must be legal or real financial connection with the person or the object which we are insuring. Timing matters in different types of insurance, है ना। टाइमिंग मैटर करता है इंश्योरेंस लेने के लिए। मिस्टेक्स या फिर हम लोग किस चीज बातों का ध्यान रख रहे हैं, डू नॉट कंफ्यूज पेरिल हजार्ड विद इंश्योरेबल इंटरेस्ट, राइट। डू नॉट थिंक ओनरशिप इज द ओनली सोर्स ऑफ इंटरेस्ट, राइट। डू नॉट फॉरगेट द टाइमिंग ऑल्सो फॉर लाइफ, मरीन और प्रॉपर्टी, राइट। तीनों के लिए अलग अलग टाइमिंग है। नो रियल लॉस मीन्स नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 जो है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पार्ट 1, जिसमें हमने दो इंश्योरेंस के बारे में, दो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, वो खत्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। एंड इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोग इन वीडियोस को देखो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट है आई थिंक। एंड जैसे जैसे आप मैं न्यू चैप्टर्स लाते जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी लाऊं, बिकॉज मैं पढ़ते जाता हूं एंड न्यू चैप्टर्स के वीडियोस बनाते जाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रेशर ब्रो। शेयर कर देना अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं IC01 की, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, राइट, सॉरी लाइसेंसिएट एग्जाम्स की, है ना। कमेंट करना कोई भी डाउट हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं 100% उसको डाउट को क्लियर करूंगा एंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखना एंड तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।